Good evening, everybody. We will start. I'm audible. Just put in chat box yes or no. Okay, good. We'll go directly to the present screen. Hope you are comfortable. I'm audible and visible or not? Because we have a network problem as usual. Just put in the chat box. Okay. So now I'll go for the screen presentation. Today, in case I am not audible, you have to tell me by making your mic on. Responsibility is given to Atharva and Sankalp. So now Sankalp will tell me whether my screen is visible or not. Yes, sir, visible. Okay. So we will continue with this particular topic. I hope you all remember that day during our 15 minutes conversation, we started with the limitations of dimensional analysis and we could not go much further than completing only limitations of dimensional analysis. Then we entered the accuracy, precision, and uncertainty in measurements, but could not continue because of the network problem. So we will not waste much of time today. We'll go into this particular part, which was left incomplete in last lecture. Let's get into this part. So Sankalp, if you don't mind, please read. From sir, from where? From this 1.7, physics is a science based on observations. Huh. Physics is a science based on observations and experiments. Observations of various physical quantities are made during an experiment. For example, during the atmospheric study, we measure during the atmospheric study we measure atmospheric pressure, wind velocity, humidity, etc. All the measurements may be accurate, meaning that the measured values are the same as the true values. Accuracy is how close a measurement to the actual value of that quantity is. These measurements may be precise, meaning that multiple measurements giving nearly identical values, that is reproducible results. In actual measurements and observations may be both accurate and precise, or neither accurate nor precise. The goal of the observer should be to get accurate as well as precise measurements. Possible measurements
uncertainties in an observation may arise due to the quality of instrument used. Second, skill of the person doing the experiment. Third, the method used for the measurement. Fourth, external or internal factors affecting the result of the experiments. Continue, continue. Can you tell? If 10 students are asked, sir वो पढ़ना है? If 10 students are asked to measure the length of a Okay. piece of cloth So if I'm up audible, to I'll a continue with the millimeter explanation. using a We meter all know scale. we started with the measurement. Yeah, that's fine. नहीं पढ़ना है, रुको. So I was telling you that we started with the measurements and units in a physics. मुझे बताइए नेटवर्क का प्रॉब्लम किसका है, मेरा है संकल्प का है? मेरे आवाज आ रही है क्या सबको? शेयर के बताइए अथर्वा. प्रॉब्लम क्या है? मेंटल प्रॉब्लम. यस सर, ऑडिबल. इतना डिले क्यों है? इतना लेट आवाज आ रही है मेरी? एनीवे, ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ही पढ़ के लेक्चर देता हूँ. हमने देखा कि फिजिक्स इज बेसिकली साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. Observations we do of various physical quantities and during basically experiments. And as the observation of the physical quantities is done in an experiment, we need to measure them, and measurement obviously will not always be accurate. 3.236 can be measured as a 3.235. So this is probably every time I will get the different reading, means it is not precise, it is not reproducible. That is the difference between the term accuracy and precision. This is what is explained in this particular paragraph, because this paragraph is going to take us to something called errors in a measurement. And errors in measurements are related to the accuracy and precision of the measurement. So if this is the matter, then let's get into something which needs some special attention, and that was the those particular four things which were listed below. Possible uncertainties in observations may arise due to following reasons. Quality of instrument used. इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं वो खराब होगा, कैसे कब, वो सब आगे एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा, इसलिए मैं यहाँ इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ. तो आपके साथ अनसर्टिनिटी इन ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल विथ क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गुड, skill of the person during the experiment is not good, the method used for the measurement is not good, external or internal factors affecting the result of experiment. ये चारों चीजें एक्सप्लेन की जा सकती है, ठीक है ही, बट वो आगे भी होने वाली है, तो हम इसमें अभी नहीं चलते हैं. कैन यू टेल? सोचिए 10 बच्चों को हमने कोई कपड़े का नाप लेने के लिए बोल दिया, मतलब मेजरमेंट करने बोल दिया. देन प्रोबेबली यू विल फाइंड दैट मीटर स्केल से मेजर करते करते 10 बच्चों ने एक ही कपड़े का एक ही नाप लेने के टाइम कुछ 10 नाप आपके सामने प्रेजेंट कर दिए. डू यू थिंक देयर आंसर्स विल बी आइडेंटिकल? ऑब्वियसली नॉट. क्यों? क्योंकि देयर इज इनबिल्ट इनएक्यूरेसी because of the personal individual calculation और counting. तो ये भी एक तरीके की एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर में आती है और पर्सनल इंटरवेंशन या पर्सनल स्किल के कारण आती है, जो हम आगे पढ़ेंगे. इसीलिए हम शुरू करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट. Faulty measurements of physical quantity can lead to errors. The errors are broadly divided into following two categories. Systematic errors are errors that are not determined by chance but are introduced by the inaccuracy. ये मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा पढ़े. तो ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, तीनों एरर्स. आई जस्ट गेट माई स्पेक्टेकल्स, होल्ड ऑन.
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ नेटवर्क का हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है। सो इफ यू हैव कम टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, आई एम ऑडिबल? कोई तो एक बोलो माइक ऑन करके। Yes, sir. यस सर। ठीक है। Either the observation or measurement process inherent to the system. Sources of systematic errors may be due to imperfect calibration of the instrument and sometimes imperfect method of observation. सिस्टमेटिक एरर जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एरर का फॉर्म या तरीका है, उसके बारे में यहाँ उन्होंने डिटेल आउट किया है। तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर, if physical measurement leads to the systematic error, what is systematic error, what are the inside types which actually include systematic error, जैसे instrument error, mental error लिखा है, error due to imperfect experimental technique लिखा है, and personal error लिखा है। तो ये 3 errors के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं। each of these error tend to be in one direction, either positive, मतलब कोई चीज को हमको 9 मेजर करना था तो हम 8.5, 8.6, 8.7 ये निगेटिव स्केल में भी मेजर कर सकते हैं, या 9.1, 2, 3 ऐसे तरीके से पॉजिटिव साइड में भी मेजर कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर एज बिलो। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अभी ये जो पढ़ने का काम है ये आप अच्छे से करते ही हो, इसलिए मैं ना आपसे पढ़ने को बोल रहा हूँ ना वो मैं खुद पढ़ने वाला हूँ। आई जस्ट टेल यू कि सोचिए आप कहीं पे मेजर करने गए अपना वेट। 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक आता है डिजिटल Sir, और your एक voice आता is है एनालॉग। breaking. ओके, तो ये फिर से हमारे नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क तो दिख रहा है। अभी आ रहा है? Yes. ओके, बीच बीच में बताते रहना इन केस यू फाइंड समथिंग। कभी कभी तुम्हारी आवाज भी नहीं पहुंचती क्योंकि नेटवर्क मेरा बहुत गया हुआ रहता है। सो व्हाट एवर इट मे बी। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम बात कर रहे थे कि जिस मेजरिंग डब्बे को, मतलब कुछ भी, आप पहले हम टेप से शुरू करते थे, बट अभी मैं टेप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल वेट मेजरिंग। आपका जो सिंपल डब्बा रहता है ना, छोटा सा, जिम में वगैरह जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, सोचिए उसका पॉइंटर जो है वो 0 से शुरू होने की वजह से बजाय 1 kg पे शुरू हो रहा है। आपका वजन दिखाया गया 55 किलो, तो एक्चुअली आपका वजन 55 किलो है कि 56 किलो है कि 54 किलो है? तो यू ऑल नो, एक पहले से था तो 55 में से एक घटेगा तो 54 किलो इज योर एक्चुअल वेट, जबकि बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इट हैज शॉन समथिंग रॉन्ग। यही आपके टेम्परेचर मेजरमेंट में थर्मो का मीटर आप यूज कर रहे हो तो होगा, यही आपके स्केल के मामले में होगा। अगर आपकी स्केल 0 पे शुरू होने की जगह सामने का टुकड़ा कट गया है और 5 सेंटीमीटर पे शुरू हो रही है, और आप सपोज अपनी मतलब हाइट नाप रहे हो एंड सपोज यू आर 165 सेंटीमीटर, देन प्रोबेबली आपका मेजरमेंट आएगा एक्चुअली 170, बट जबकि शुरुआत के 5 उसमें से घटाने पड़ेंगे तो यू विल बी 165 अगेन। So this is how we all need to take care of instrumental error, or we have to get the right instrument for measurement. आप बोलेंगे इसमें कुछ सचमुच सीखने लायक है क्या? सीखने लायक नहीं, याद रखने लायक है। आप सबको ये जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन साइंस में रहती है उसको पक्का याद करना पड़ता है, और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें नए शब्द होते हैं, बड़े बड़े शब्द होते हैं, उनके बड़े बड़े मतलब होते हैं। सो यू हैव टू बी कॉशियस, अलर्ट, एंड यू हैव टू बाय हार्ट सम सर्टेन थिंग्स टिल यूर ग्रेजुएशन। इसमें बिल्कुल ही कभी ये फील मत करिए कि नहीं नहीं मैं तो बाय हार्ट कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो we have understood instrumental error. Let's get into the error due to imperfection in experimental technique. This is due to defective settings of the instrument. For example, measured volume of the liquid in a graduated tube will be inaccurate if tube is not held vertically. आपने measuring flask, measuring tube, कितनी सारी चीजें देखी होंगी। तो इन सब चीज में आप अगर उस पर्टिकुलर ट्यूब को या बीकर को टेढ़ा कर दो तो आपको वो एक्चुअली 1 लीटर की जगह कुछ और रीडिंग बताएगा, क्योंकि पकड़ने का तरीका ही गलत हो गया। वी एक्सपेक्ट दैट इट विल बी फ्लैट, हॉरिजॉन्टल टू द फ्लैट सरफेस जिस पे हमने रखा है,
तो रेफरेंस जब तक सही नहीं है, आपकी एक्यूरेसी विल बी अफेक्टेड and it will include or indulge inaccurate reading, and that is something related to the experimental technique. ये आप ऐसे के ऐसे समझेंगे तो भी चलेगा. पर्सनल एरर, पर्सनल एरर में पहली चीज तो जो पैरेलैक्स हमने सीखा मेजरमेंट के लिए एंगल सबटेंड होता है वगैरह, वो पैरेलैक्स शब्द आप यहाँ भी देखेंगे. जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में जहां पे पॉइंटर नाम की एक चीज एक ग्रेजुएटेड स्केल पे घूमती है, उसके नीचे एक छोटा सा मिरर का भी आर्क रहता है. क्यों? क्योंकि आप जब रीडिंग देख रहे हो तो आपको ऊपर का जो पॉइंटर है उसकी इमेज मिरर में कोइंसाइड करनी है, तभी आपको सही रीडिंग मिलेगा. नहीं तो आप लेफ्ट से देखोगे तो आपको राइट की तरफ ज्यादा घुमा हुआ दिखेगा पॉइंटर, और राइट से देखोगे तो लेफ्ट की तरफ दिखेगा. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की इनएक्यूरेसीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी. अभी ये भी मैं बहुत ज्यादा खुल के ओपन करके बता सकता हूँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस थ्री थिंग्स आर क्वाइट वेल नोन टू एवरीबडी. शायद आपने ये 8वीं 9वीं 10वीं में भी कभी तो पढ़ा होगा. कोई तो एक मुझे बता दो कि आपने पढ़ा है क्या गलती से. मेरी आवाज आ रही क्या? भाई मेरे मैं मोबाइल पे पढ़ाता हूँ तो आपका चैट बॉक्स नॉर्मली नहीं देखता, तो आपने शायद अभी जवाब दिया कि नो सर हमने ये नहीं पढ़ा था. तो अभी जब मैंने पढ़ाया तो समझा क्या चैट बॉक्स में बताइए यस और नो. नहीं नहीं नो नहीं यस, हाँ यस अभी समझा ना, ठीक है दैट इज फाइन. क्योंकि तुम लोग का सब लोगों का परसेंटेज बहुत अच्छा है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा है थोड़ा, इसलिए मैं स्पीड में जाता हूँ. आज पूरा पूरा कोरम है. सूरज भी है, संकल्प भी है, समीर भी है, आर्या भी है, अथर्व भी है. मतलब आज हम स्पीड पकड़ सकते हैं. तो चलो स्पीड पकड़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं. रैंडम एरर्स की बात करते हैं. रैंडम वर्ड से ही मतलब समझ में आएगा कि दीज आर रैंडम एरर्स. These are the errors which are introduced even after following all procedure to minimize systematic error. अभी सिस्टमैटिक एरर्स को टोटली इलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी रैंडम एरर आ सकता है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक एरर से हटके या थोड़ा अलग एरर है. These types of error may be positive or negative. Every error is positive negative. हाँ, बहुत रेयरली ऐसे होगा कि it will be always on a positive side. कब कैसे वो थोड़ा बाद में हम विस्तार से वक्त मिलेगा तो समझेंगे. These errors cannot be eliminated completely but can be minimized. तो कोई पूछे क्या सिस्टमैटिक एरर पूरी तरह एलिमिनेट हो सकता है क्या, रैंडम एरर पूरी तरह एलिमिनेट हो सकता है क्या, तो उस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको ये पक्के याद रखना है. These errors but we can minimize them by repeated observations and then taking their mean. यहाँ शुरू हो गई कैलकुलेशन की. रैंडम एरर्स के मामले में अगर हम 4 रीडिंग ले, वो 4 अलग है, तो उनका अगर अरिथमेटिक मीन निकाले तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू विल बी फार बेटर कंपेयर टू चूजिंग दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैल्यू टेकन बाय अस. बात समझ में आई? 4 रीडिंग लिया, 4 अलग रीडिंग आया, तो 4 का अरिथमेटिक मीन इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रीडिंग. ये अभी इंजीनियरिंग में इवन न्यूक्लियर फील्ड में काम करते वक्त मैं खुद भी करता हूं, जब मैं कहीं जाके मेजरमेंट्स यानी डायमेंशनल मेजरमेंट्स ऑफ दी वेरियस इक्विपमेंट करता हूं. तो ये आपको भी अभी हमको यूज करना है. रैंडम एरर्स ऑकर ड्यू टू वेरिएशन इन कंडीशंस. क्या कंडीशंस है? विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. फॉर एग्जांपल, the temperature may change during the course of experiment, pressure of any gas used in the experiment may change, or the voltage of the power supply may change. मतलब कंडीशंस चेंज हो गई तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि भाई उसके कारण जो रिजल्ट्स आने थे वो चेंज हो गए, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट द इनएक्यूरेट रिजल्ट्स. तो इस तरीके के एरर्स का मेजरमेंट जरूरी है, क्योंकि ये एरर तो इंट्रोड्यूस होनी ही है. कोई चीज से लंबाई अगर आप यहाँ मेजर करोगे, एक सिंपल स्केल है जो थोड़ा ऐसा सोचिए कि उसका थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, ऐसे मटेरियल से बना है, तो यहाँ पे मतलब जो हम रहते हैं अणुशक्ति नगर, पनवेल, मुंबई, यहाँ पे वो रीडिंग अलग देगी. शायद ठंडी जगह पे कश्मीर में जाए तो अलग देगी, और सपोज वेस्ट इंडीज में इक्वेटर पे जाए तो अलग देगी. तो ये आपको समझ में आना चाहिए.
टेम्परली उसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। मैंने जो बात कही वो यहाँ इन्होंने लिख दी। सपोज रीडिंग्स रिकॉर्डेड रिपीटेडली फॉर फिजिकल क्वांटिटी आर A1, A2, A3, then A mean is A1 plus A2 plus A3 divided by 3. If I go for the n number of readings, that is to generalize the mathematical expression, then probably arithmetic mean A mean is nothing but A1 plus A2 plus A3, like that I'll go up to addition of the AN term divided by n, and I will write it down as A mean is equal to 1 divided by n summation of AI, where I tends to 1 to n. अभी ये सब चीज आपको पता है क्या? चलो चैट बॉक्स में लिखो यस नो। समीर, संकल्प ने तो लिख दिया, बाकी लोग क्या करेंगे? यस नो, पता है कि नहीं ये सब? अथर्व ने लिख दिया तो मैं अथर्व को ही ग्रांटेड लेके चलूं? चलो, बाकी लोग नेटवर्क से बाहर है? नहीं, ठीक। सो लेट्स गेट इनटू दिस पार्ट। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड, मैं जब बोला था वही रिपीट हो रहा है मैथमेटिकली, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जब किसी चीज का मेजरमेंट कर रहा था, एक्चुअल वैल्यू 5 थी, मुझे 5.2 मिली, 5.3 मिली, 4.8 मिली, 4.7 मिली, तो मैंने इन सबका 4 वैल्यूज को जोड़ा, उसको 4 से डिवाइड किया, तो ऑटोमेटिकली जवाब आया तकरीबन 5 के आसपास। अभी ये जो निकाला इसको मैं बोलूंगा मीन, क्योंकि इट इज अरिथमेटिक मीन। बट अगर इसी चीज को मैं एरर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग, कौन सी ईच रीडिंग? A1 की, A2 की, A3 की, इस तरीके से हर एक रीडिंग की मैं अगर एब्सोल्यूट एरर लेना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1 रीडिंग कंपेयर टू द मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ A मीन माइनस A1। मतलब जो एक्चुअल रीडिंग मैंने एक पहले नंबर पे ली, उसको मैं जो एक्चुअल मीन रीडिंग आई सबका समेशन करके उसका एवरेज निकालने के बाद, उसका अगर मैं एक विदाउट साइन वाला वैल्यू लू तो जो आएगा उसको मैं बोलूंगा डेल्टा A1, दैट इज एब्सोल्यूट एरर ऑब्जर्व्ड इन अ रीडिंग फॉर A1 रीडिंग। पहले नंबर का जो मैंने A का रीडिंग लिया उसमें मुझे A1 मिली। सिमिलरली डेल्टा A2 कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा AN कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मुझे क्या करना है? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब अप टू डेल्टा AN करूंगा और डिवाइड n से करूंगा, तो मुझे जो मिलेगी वो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। इस मामले में अगर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने में ज्योमेट्रिक मीन, समेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो फंडामेंटल इटरेशंस है, इसमें अगर आप सक्षम है देन प्रोबेबली यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम। आप थोड़ा बताएंगे क्या यहाँ चैट बॉक्स में कि बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन में कोई कमजोर है तो लिखेगा नो, और नो लिखेगा मतलब समझा नहीं, और अगर अरिथमेटिक आपका अच्छा है तो आप लिख दीजिए यस। चलो लिखो फटाफट। सूरज मस्के नो लिखा, संकल्प अथर्व यस, हाँ चलिए आगे। आर्या, समीर नो। समीर और सूरज का रिप्लाई आया कि भाई हमको ये अरिथमेटिक इटरेशन का प्रॉब्लम है। तो सूरज माइक ऑन करिए अगर आपको आवाज मेरी आ रही है तो। सूरज, हाँ आप बोलिए कि आपको बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में प्रॉब्लम है? नहीं सर, बेसिक आता है। आता है ना? नहीं, क्यों पूछ रहा हूँ सूरज, ये इसलिए क्योंकि हम ओरली पढ़ा रहे हैं ना, तो ओरली सूरज, समीर, आर्या, इन लोग जो बेसिकली थोड़ा वीक होने का चांस है, उनको ऐसे लगेगा सर तो बोले जा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको घर पे जो मैंने पढ़ाया उसका प्रैक्टिस करना है। जो चीज नहीं समझी वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपने नो लिखा तो शायद मेरी बात को आप समझे नहीं कि ये आता है नहीं आता है। तो जो अब तक मैं आपको दिखा रहा था दोज आर नथिंग बट 4 रीडिंग आया, 4 रीडिंग का एडिशन किया, उसको 4 से डिवाइड किया,
जो भी एवरेज आया उसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ये हमको पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया तो अभी से आप उसको समझ लीजिए। ओके, विल गो टू द किताब नोटबुक। So we talked about the mean value of whatever reading we want to take, and that is we said a mean, and then we did the summation वाला फार्मूला अप्लाई किया, फिर हमने एरर निकाला और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। ये दोनों चीज आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है क्योंकि आगे इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करने वाले। देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी a can then be represented by a is equal to a mean plus or minus delta a mean। अभी क्या किया इन्होंने कि इतनी देर तक हम इंडिविजुअल के साथ उस चीज को जोड़ के या सब्ट्रैक्ट करके हम एरर निकाल रहे थे और उसको हम बोल रहे थे एब्सोल्यूट एरर। अभी इस एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला, देन जो रीडिंग आया था उसका मीन निकाला, दैट इज ए मीन, एंड एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला, दैट इज दिस, ये। तो इन दोनों से हमको ये पता चला कि अगर ए मीन मतलब जो अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्चुअल रीडिंग्स है बहुत सारे, उसके साथ में जोड़ू या घटाऊं एब्सोल्यूट मीन एरर, तो मुझे ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ये मिलेगा, विच विल बी द बेस्ट आंसर फॉर माय एक्चुअल रीडिंग। मतलब गलती तो होनी है क्योंकि एरर्स आर मस्ट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट, तो गलती होगी तो गलती सुधारने के लिए किस तरीके से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरीके से किया जाए। ये आपको समझा होगा, ऐसे मैं ले लेता हूं और आपके लिए एक बार पढ़ भी देता हूं। मैं ये स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर नहीं रहा था क्योंकि आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी, अभी कर देता हूं। तो हम यहाँ थे, ये पढ़ा, फिर हम यहाँ आ गए, किधर गए, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, हाँ ठीक, हम यहाँ आ गए थे। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए कैन बी देन रिप्रेजेंटेड बाय, ये बोले हमने कि a इज इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, which tells us that the actual value of a could be between a mean minus delta a mean and a mean plus delta a mean, the ratio of mean absolute error। अभी ये नई चीज सीख रहे हैं, अब तक हमने जो जो एरर्स पढ़े उस एरर में मीन वैल्यू निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। अभी हम कुछ चीज की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव एरर, और इस रिलेटिव एरर को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा परसेंटेज एरर। ये दोनों चीज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगेंगी, फिजिक्स में भी लगेंगी, केमिस्ट्री में भी लगेंगी, और शायद स्टैटिक्स के किसी हिस्से में कहीं ना कहीं आपको ये मिलने वाली है। तो इन चीज को यहाँ 2-3 बार पढ़िए, क्लास के बाद आपको इसका जरूर फायदा होगा। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, किसका किसके साथ, मीन एब्सोल्यूट एरर टू अरिथमेटिक मीन, मतलब डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए इज नथिंग बट रिलेटिव एरर। तो है क्या वो, आगे जाके देखेंगे। देखिए यहाँ पे, when relative error is represented as a percentage, it is called percentage error। percentage error is nothing but relative error into 100। तो relative error मैंने क्या बोला था, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। तो ये चीज एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट एरर, मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेरियस रीडिंग, ये सारी चीजें अच्छे से समझ लो। आपके लिए शायद ये नहीं है तो थोड़ा तकलीफ होगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। एक्टिविटी, कोई फायदा नहीं इस एक्टिविटी का, क्योंकि ना आपके घर पे वर्नियर कैलिपर है, ना मेरे घर पे जो है वो मैं आपको लाके दे सकता हूँ। तो जब भी आप लैबोरेटरी में जाएंगे फिजिक्स के 11th के, तभी इस चीज को देख लीजिए। अभी टेम्पररी पढ़ लेते हैं। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ अ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। अभी आपके घर पे हॉलो सिलेंडर है क्या, अभी आप बोलेंगे नहीं है। तो जरा मैं भी देख लूँ आपका प्रैक्टिकल घर पे काम कितना करते हैं आप लोग। घर पे है ऐसा कोई भी हॉलो सिलेंडर बताओ जिसका आप वर्नियर कैलिपर अगर घर पे होता तो मेजरमेंट करते डायमीटर का, बताइए। चलो चलो बोलो जल्दी, क्या है घर पे हॉलो सिलेंडर। समीर बोपी बोल रहा है नो, घर पे हॉलो सिलेंडर ही नहीं है आपके। ठीक है, और कोई,
Sir, can we use a bottle? This is something interesting. Sankalp, very good idea. Okay, चलो आगे. अथर्व शेळके जी बोलिए फटाफट. आर्या, किचन बिचन में जाते हो कि नहीं, कि सिर्फ खाना खाने का काम करते हो? बोलो बोलो. सिल्वर फॉइल सिलेंडर. वेरी गुड. ठीक है. वैसे ही आपके घर पे जितना भी मतलब वेफर्स भी जिस स्प्रिंगलेस के डब्बे में आता है ना, वो भी हॉलो सिलेंडर ही एक तरीके से. वैसे आपको मेजर करना है एक्सटर्नल डायमीटर. मतलब घर पे कोई पाइप का टुकड़ा पड़ा है तो वो भी हॉलो सिलेंडर ही है. इवन घर पे अगर सपोज लौकी आता है तो लौकी को हॉलो सिलेंडर नहीं बोलेंगे, बट सिलेंड्रिकल जरूर बोलेंगे. तो इस तरीके से आप उस चीज का वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करोगे तो क्या आएगा वो यहाँ बताने की कोशिश हो रही है, जो आपको अच्छा लगेगा. Using vernier caliper of least count 0.01 centimeter to measure the external diameter of hollow cylinder, take 3 readings at different position. मतलब जैसे संकल्प ने बोला कि मैं बॉटल लेता हूँ कोई भी, मतलब अभी आप बोलोगे उसका तो ट्रपेजी मतलब कुछ अलग ही हेक्सागोनल वगैरह शेप रहता है उसके एक्सटर्नल सरफेस का. कोई भी ले लीजिए, उस 2 स्पेसिफिक पॉइंट जो आपने पकड़े उस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाते जाओगे तो प्रोबेबली यू विल फाइंड दैट आपने सेम बॉटल के सेम साइज के 3 रीडिंग लिए, फिर भी रीडिंग में कहीं ना कहीं माइन्यूट फर्क आ गया. तो दैट इज व्हाई इट इज दे आर टेलिंग अस फाइंड द मीन डायमीटर. कैसे निकालेंगे 3 डायमीटर जो आपने मेजर किए उसका अरिथमेटिक मीन, द एब्सोल्यूट मीन एरर. एब्सोल्यूट मीन एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक जो मीन आया, मीन से जो इंडिविजुअल रीडिंग है उसका सब्ट्रैक्शन करना है, और फिर वहां जैसे बताया है वैसे उसका जो एब्सोल्यूट मीन एरर आया उसको अगर आप मीन से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द परसेंटेज एरर, अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे. तो ये चीज आप घर पे समझे कि आपने आज आधे घंटे में क्या सीखा, पर उसके पीछे ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये लोग बहुत हेल्पफुल है. इन्होंने इमीडिएटली सिमिलर टाइप का उदाहरण दे दिया. उदाहरण ये है, the radius of sphere measured repeatedly is value 5.63 meter, 5.54 meter, 5.44 meter, 5.40 meter and 5.35 meter. कितने रीडिंग, 5 रीडिंग. तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से. किसको ऐड करना पड़ेगा, ये जो 5 रीडिंग दिए उनको. डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस एंड द मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर. सब कुछ जो ऊपर वाले उदाहरण में बोला था वो सब यहाँ पे वही वैल्यूज आपको दिए हैं. ऐसा पकड़ लीजिए, अभी हम बात करते हैं स्पेयर की, स्पेयर को छोड़ दीजिए, सोचिए कि आप वही डायमीटर की ही बात कर रहे थे और वो डायमीटर आपको ये तरीके से मिला. ऑफकोर्स 5.63 मीटर थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है, 5 मीटर का पाइप आपके घर में से ढूंढने से नहीं मिलेगा, तो फिर भी अजम्पशन बेसिस पे चलते हैं. डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो अरिथमेटिक मीन निकाला. अभी ये कैलकुलेशन बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं है. 5.472, ये जो 5.472 नाम की चीज आई इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर. वो हम बाद में पढ़ेंगे इसलिए इसको इधर टच नहीं करते. मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना है, जो मीन आया उस मीन को इंडिविजुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है और आगे बढ़ना है. तो इंडिविजुअल से सब्ट्रैक्ट करते गए, 5.63 से सब्ट्रैक्ट किया 5.472, 5.54 से सब्ट्रैक्ट किया 472, 5.44 से सब्ट्रैक्ट किया 5.472, 5.4 से सब्ट्रैक्ट किया 5.472. ऐसे करते करते बढ़ते रहे और उसका मॉड लेते रहे, तो उसका जो साइन आएगा वो हमारे साथ इंटरफेयर नहीं करने वाला है. तो जो रीडिंग्स आए उसको हमने फिर से 5 से डिवाइड किया तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर मिला विच इज वेरी लेस, 0.0904. फिर हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ. इसके लिए क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हम यहाँ तक पहुंचे. अभी हमको लेके जाना है आपको यहाँ. ये भी मालूम है ऊपर वाला डेल्टा ए मीन और ए मीन, तो इन दोनों से मैं गया आगे और मैंने रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया. डेल्टा ए मीन और ए मीन, डेल्टा ए मीन है 0.0904 और ए मीन है 5.472. इस चीज को लॉग टेबल से आप सॉल्व करोगे तो आपको जवाब आएगा 0.017. आप सबको मुझे मैसेज करके बताना था कि इस तरीके के डिवीजन सब्ट्रैक्शन में आप सक्षम है कि नहीं. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सच डिविजन्स
You have to tell me, so we will add 1 hour to explain you such type of across the line division and multiplication. तो ये रिलेटिव एरर आ गई. अगर इसी चीज को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो सीधे 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, तो 0.017 हो जाएगा 1.7%. तो ये आ गया आपका जवाब. अभी इन्होंने बोला कि ये जो हमने शुरू की थी इनएक्यूरेसी से, प्रेसिजन से, फिर सिस्टमेटिक एरर से, फिर 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंटल मेथड वाला एरर, फिर पर्सनल एरर, फिर घुसे रैंडम एरर में. और रैंडम एरर में आने के बाद हमने बात की कि रैंडम एरर के कैलकुलेशन में अरिथमेटिक मीन और उससे जुड़ा हुआ एवरेजिंग टेक्निक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मीन एंड द एरर्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर. अभी हम बात करेंगे कि सोचिए हम सिर्फ वस्तुमान यानी मास नहीं कैलकुलेट कर रहे, लेंथ नहीं, सिर्फ टाइम नहीं. सोचिए कोई ऐसी एंटिटी यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी फिजिकल एंटिटी इन्वॉल्व है. जैसे हमने बोला था ना, फंडामेंटल के लिए फंडामेंटल लगता है या वो अपना खुद डिस्क्रिप्शन खुद देता है या उसके लिए स्टैंडर्ड यूज करते हैं. बट अगर डिराइव्ड यूनिट्स के लिए जाए या क्वांटिटीज के लिए जाए तो हमको 2-3 फंडामेंटल चीजों की मदद लेनी पड़ती है. तो वो चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं. 2-3 एंटिटीज है, उनका मल्टीप्लीकेशन भी होना है, शायद डिवीजन भी, शायद एडिशन भी, शायद सब्ट्रैक्शन. और डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर्स को किस तरीके से हैंडल करना है ताकि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से हो, ताकि एरर का इनऑल कंट्रीब्यूशन इन मेजरमेंट शुड नॉट बी इनएक्यूरेट. आप बोलोगे ये सब भाषण से कुछ नहीं समझा. सही बात है. तो यहाँ जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा. चलो पढ़ो सब लोग. अभी मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बड़े बच्चे हो, मन ही मन पढ़ लो. पैराग्राफ तभी खत्म होगा जब मैं पढ़ लूंगा मन ही मन में, तो मेरा भी थोड़ा वॉल्यूम का जो इंटेंसिटी है उसमें एनर्जी जाता है वो बचेगा. सो लेट्स रीड. मन ही मन पढ़ लीजिए, खत्म करते ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. मेरा तो हो गया, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. इन्होंने वही बात बोली जो मैंने कही कि जब 2-3 चीजें फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहती है और फाइनल रिजल्ट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम. जैसे हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, करंट है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो सबको बचपन से एक फार्मूला पता रहता है, V इज इक्वल टू आई आर. V इज वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज इक्वल टू I मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड R इज अ रेजिस्टेंस. मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर में हो क्या जाएगा, R इज इक्वल टू V बाय I. तो V के कैलकुलेशन में X एरर आ गया, I की कैलकुलेशन में Y एरर आ गया, तो R के कैलकुलेशन में X एंड Y दो एरर आए, तो X प्लस Y करना है, X इंटू Y करना है, X डिवाइडेड बाय Y करना है. ये डिसीजन हम कैसे ले इसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो ये जो चीज है, सॉरी बट आपको मैंने जितना पोर्शन सामने रखा है उतना पढ़ना है. छोड़िए, इतना ही पढ़ लीजिए, यही पढ़ लीजिए. दो तरीके से हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं. एक, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाले, दूसरा जब हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मैंने जिस प्रॉब्लम की बात कही रेजिस्टेंस वाले, वो डिवीजन वाला प्रॉब्लम है, वो यहाँ नहीं सामने आ रहा है. ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है. सोचिए कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसमें दो चीजें जुड़ रही थी. सोच लीजिए मैं पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहा था, तो पेरीमीटर में मुझे रेक्टेंगुलर पाथ पे अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे लेंथ एंड ब्रेड दोनों का एडिशन करना पड़ता है. 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड. तो ये 2 बार करने में लेंथ में मैंने x इंट्रोड्यूस किया एरर और ब्रेड में मैंने y किया, तो ऑटोमेटिकली आगे जाके वो x प्लस वाई होना है. यही हमको पता चलेगा क्योंकि वी विल बी टेकिंग, अगर कोई एक्सपेरिमेंट में मुझे 2 एरर्स आए, एक आई 0.5 और दूसरी आई 0.3,
तो कोई भी चीज में 0.5 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है, इफ आई एम नॉट कंसिडरिंग दी माइनस साइन, तो ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकली बड़ा है, मतलब 0.5 बड़ा है, 0.5 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 4 बड़ा है, तो इस तरीके से जो मैक्सिमम आएगा उसको हम ज्यादा तवज्जो यानी इंपॉर्टेंस देंगे. We will give it more importance, and if it is the correct methodology, then here you are going to get the answer that in errors in sum and difference will always be additive, and that addition is nothing but absolute mean error के addition करके आप ये problem से छुटकारा पा सकते हो. And the example given by me was perimeter, जो आपको आगे जाके समझेगा. वो उन्होंने नहीं दिया है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया. Suppose two physical quantities A and B have measured values. A उसकी एक्चुअल वैल्यू है, प्लस और माइनस डेल्टा A इज इट्स एरर, जो एरर का लिमिट है प्लस और माइनस वो है. एंड B के साथ जुड़ा हुआ है डेल्टा B, where delta A and delta B are the mean absolute errors. We wish to find the absolute error in delta Z. क्यों? क्योंकि Z is nothing but A plus B. मतलब आप सोचिए कि आधी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाह रहे थे जिसमें A लंबाई थी और B ब्रेड थी. तो Z की मेजरमेंट यानी आधी पेरीमीटर निकालते वक्त हमको A के साथ B ऐड करना था और A के साथ उसका इनहेरेंट पार्ट था मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A, और B के साथ उसका इनहेरेंट पार्ट था B डेल्टा B, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद B मेजरमेंट. तो दोनों कर दिए. अभी हम डाल देते हैं Z के साथ कौन था भाई, तो Z मेजर करते वक्त Z के साथ प्लस और माइनस में डेल्टा Z आएगा, A के साथ A प्लस और माइनस डेल्टा A आएगा, B के साथ B प्लस और माइनस B डेल्टा B आ जाएगा. अभी इनको आप सिंप्लीफाई करो तो A और B साथ में आ गए. आई एम टॉकिंग अबाउट RHS साइड. RHS साइड में A प्लस B आ गया, साथ में प्लस और माइनस डेल्टा A आ गया, प्लस और माइनस डेल्टा B आ गया. अगर मैं प्लस और माइनस को बाहर ले लूं तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B आने वाला है, और हम उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जो A प्लस बी आपको दिख रहा है सेंट्रल फिगर, वो A प्लस बी इज नथिंग बट Z. यहाँ जो Z है, तो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था इस Z की, ये Z के लिए मुझे टेम्पररी जाना है यहाँ. ये जो थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, तो ये जो हमको इस्तेमाल करना था, इस चीज को अगर मैं इधर डाल दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो Z यहाँ आ गया, तो ये बच गए, तो ये बचे, तो Z तो चले जाएंगे, तो Z मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज चला गया. तो डेल्टा Z का वैल्यू क्या बचा, डेल्टा Z का वैल्यू बचा डेल्टा Z का वैल्यू बचा डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. और डिफरेंसेस इट विल गो इन द सेम पाथ, ओनली यहाँ पे प्लस और माइनस ही रहेगा. मतलब देर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ. मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर आता हूं ताकि मैं देख सकूं. अच्छा, होल्ड ऑन, मैं आपका चैट बॉक्स भी चेक कर लेता हूं ताकि मुझे समझ में आए कि आपको तकलीफ तो नहीं है. नहीं, प्रोबेबली आई एम विजिबल आल्सो. पहले पूछ लूं, नहीं तो सब गायब होते रहते. आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, पुट इन चैट बॉक्स, यस और नो. ठीक है, गुड. किताब ढूंढना पड़ेगा, रुकिए. ठीक है, तो हम यहाँ थे, जिसको मैं रोटेट कर देता हूं. हम यहाँ थे, हम बात कर रहे थे कि देर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज फॉर डेल्टा Z. क्या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, जो उन्होंने नंबर 2 पे लिखा है, प्लस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, जो उन्होंने नंबर 1 पे लिखा है, देन माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, फिर माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B. Hence the maximum value of absolute error is always
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैं आपको बोला था जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसी को हम पकड़ेंगे क्योंकि दैट इज गोइंग टू गिव अस मैक्सिमम एरर। So when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute errors in individual quantities. तो यहाँ पे एक फिक्स हो गया कि जब भी हम इस तरीके के errors in sum and difference की बात करें, दोनों की जो absolute mean error है उनकी addition is our total error in the summed result. प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं देखिए, प्रोडक्ट में z इज इक्वल टू ए बी लिखा, फिर a क्या है तो a इज नथिंग बट a प्लस डेल्टा a, b क्या है तो b विल बी b प्लस माइनस डेल्टा b, z विल बी व्हाट z प्लस डेल्टा z प्लस और माइनस। अभी इस ब्रैकेट को हमने सोचिए इसका हमने एक्सपांशन करना चाहा। नाउ यू नो आई नीड नॉट टेल यू, इट विल बी a इंटू b, a इंटू डेल्टा b, डेल्टा a इंटू b, डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अभी ये लोग क्या बोलेंगे इस चीज को, ये लोग बोलेंगे कि ये चीज जो है ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। तो ये जो चीज देख रहे हैं इसमें एक चीज आपको हमेशा सीखनी है कि इस चीज को अगर हम सही मायने में लाना चाहते तो हम इस z प्लस वाले को हम जो है वो इस चीज से हम उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड करने से ये होगा कि ये जो चीज है उसमें सब जगह पे आपको 1 प्लस और माइनस सब जगह बी ए दिखने लगेंगे और उसमें से ये चीज बहुत छोटी होने के कारण हम उसको हटा देंगे। तो वही उन्होंने लिखा, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बाय बी आर वेरी स्मॉल, वी शैल निगलेक्ट देयर प्रोडक्ट, हेंस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज दिस। तो ये वाली चीज आ गई, कौन सी, ये 1 1 हट गया, ये चीज हट गई, ये चीज हट गई, तो बची ये और ये। तो इस चीज की बात करें, इसको हमने हटा दिया क्योंकि ये चीज जो थी वो थी बहुत कम, क्योंकि ये रेशियो है और उसका मल्टीप्लीकेशन है। तो 0.1 से 0.1 मल्टीप्लाई होता है तो 0.01 होता है। तो 0.01 विल बी अगेन गोइंग वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम इसमें से इस खुद को बाहर निकालेंगे। अभी कितना अंडन हो रहा है मुझे नहीं मालूम, होपफुली पूरा हो जाए, हो गया, गुड। सो हम अभी आ रहे हैं इसमें, this is what we obtained. This formula also applies to the division of two quantities. Hence, when two quantities are multiplied or divided, the maximum relative error in the result is the sum of relative errors in each quantity. ये आप देख रहे, पहले हमने मीन एब्सोल्यूट एरर का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पे हमने रिलेटिव एरर्स का एडिशन किया। तो मतलब जब भी हम लोग एडिशन वाली सम या डिफरेंस ऑफ द एरर्स की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मीन एरर्स की एडिशन होती है। और जब भी हम लोग रेशियो के टर्म्स में कोई एंटिटीज लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के मामले में V डिवाइडेड बाय I ले रहे थे, तो हमको उनकी इंडिविजुअल की मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर आई उसको ऐड करना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये सब रामायण समझा। लेट अस गो इनटू चैट बॉक्स। बोलिए चैट बॉक्स में, अरे वाह तो बहुत पहले वाला है। चैट बॉक्स में बोलो क्या समझा, ये सब बताया वो, सूरज को समझा नहीं, संकल्प को समझा, अथर्व को समझा, ठीक है। 50% वोटिंग इज इनफ फॉर मी, ओके। सो हम फिर से इसमें चलते हैं। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, हो गया अपना। ये चीज यहाँ वही दिखाई, एरर्स ड्यू टू पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि सोचिए एक z नाम की फिजिकल एंटिटी है, वो a नाम के एंटिटी से इस तरीके से जुड़ी है कि z इज इक्वल टू a क्यूब, मतलब z इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a। तो डेल्टा z बाय z विल बी डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय a। ये तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था।
रिलेटिव एरर का, भाई रेशियो के और मल्टीप्लिकेशन के मामले में रिलेटिव एरर का समेशन होता है। फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन रूल अबव, hence the relative error in Z is equal to A cube is 3 times the relative error in A. So if Z is equal to A raised to n, then relative error in Z will be n into relative error in A. समझा क्या ये चीज कि अगर Z is in proportion such a way that Z is represented by the power of A, then that power is 3, then the relative error in Z will be 3 times the relative error in A. If it is n times, तो n time हो जाएगा, यही यहाँ पे दिखाया गया। फिर से चाहिए तो आपको मैं इस चीज को लिख के भी दिखा सकता हूँ, चाहिए तो आपको थोड़ा आराम। कमेंट्स बात हो रही है, इस सोचिए हम किसी एक झेड़ नाम की चीज को एक क्यूब बोल रहे हैं। अब सॉरी, ठीक है, यहां लिख देते हैं छोटा सा, z इज इक्वल टू ए क्यूब। जब भी कैलकुलेशन किया यहां दिखाया हुआ, तो जवाब आया कि भाई डेल्टा z डिवाइडेड बाय z is nothing but 3 times डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। तो ये 3 अगर मैं n कर दूं, मतलब इसको मैं n कर दूं, तो ये n हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट दे हैव शोन हियर। ये चीज आपको अगर समझ में आई हो तो हम, गिव मी सेकेंड, मैं पहले सब अंडू कर देता हूं। गुड। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि इन जनरल इफ z इज इक्वल टू a raised to p, b raised to q and c raised to r, the z delta z by z will be p plus q in the relative error in a plus q into relative error in b plus relative error r into relative error in c. The quantity in formula which has got large power is responsible for maximum error. जिसका पावर बड़ा है, सपोज p की जगह 2 होता, q की जगह 3 होता, r की जगह 1 होता, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसके कारण होता वो होता q, क्योंकि 3 is more than 2 and 1। यही चीज उन्होंने यहाँ बोली है। द क्वांटिटी इन फार्मूला विच हैज गॉट लार्ज पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। अभी इसी चीज को प्रॉब्लम से हम लेने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम जो है प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑन ऑब्जेक्ट, मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड। तो ये मास की वैल्यू दी गई, मीन वैल्यू विद एब्सोल्यूट एरर, दूसरी डेंसिटी की मीन वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर। तो दोनों को यूनिट एक ही केजी पर मीटर क्यूब रखा गया। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रेशो होने वाला है। हम वॉल्यूम, मास, डेंसिटी का फार्मूला याद रखना पड़ेगा 11th-12th में, तो वो है ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, बट यहाँ प्रॉब्लम वॉल्यूम से एसोसिएटेड है। सो दे डिड दैट शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, दैट इज कैपिटल M by rho। परसेंटेज एरर इन अ वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑब्वियसली डेल्टा M by m एंड डेल्टा रो बाय रो। आप बोलोगे ऐसे कैसे कर रहे हैं लोग, यहाँ तो m डिवाइडेड बाय रो है, तो यहाँ समेशन कैसे किए? समेशन इसलिए किए क्योंकि यू डोंट हैव टू फॉरगेट, कौन सा भी हो, डिवीजन हो, रेशो हो, एरर्स आर ऑलवेज समड अप। यहाँ रिलेटिव एरर की समेशन हुई और यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की समेशन। तो ये चीज आपको कभी भी भूलनी नहीं है, ये पक्का याद रखिए कि आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने हैं ताकि आपको ये चीज फटाफट समझ में। तो ये समझ में आ गया कि डेल्टा M by m इज इक्वल टू डेल्टा रो बाय रो। तो यहाँ m भी है, डेल्टा M भी है, रो भी है और डेल्टा रो भी है, तो यहाँ उसकी वैल्यूज डाल दो। डालने से हमको मिला एक जवाब, जिसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिला परसेंटेज एरर विच इज रिलेटिव एरर इनटू 100।
तो ये रिलेटिव एरर इंटू 100 किया तो जवाब आया 7%, विच इज द एरर इन कैलकुलेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आगे सोचिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेंथ दी है, फिर टाइम पीरियड दिया है, एंड फिर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी निकालनी है। जरूरी है कि आपको फार्मूला पता हो कि पीरियड ऑफ पेंडुलम इज ऑलवेज गिवन बाय 2 पाई इंटू लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट अंडर रूट। बट अभी हमारा प्रॉब्लम है जी का, तो पहले जी को बाहर निकालो खींच के। तो जी को निकालने के लिए पहले ये स्क्वायर रूट वाला नाटक हटाना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। जी को उधर लेके जाऊंगा तो टी यहां आ जाएगा, तो जी विल बी 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू एल। क्या सही है? हम सही है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। यहाँ 4 पाई स्क्वायर का एरर कैलकुलेशन में कोई फायदा नहीं, क्योंकि इट इज कांस्टेंट। एल एंड टी आर गिवन एंड वी हैव टू जस्ट पुट देम, क्योंकि यहाँ पे हम इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पावर वाला, इंडेक्स वाला। तो यहाँ पे उन्होंने डेल्टा एल 0.1, एल इज इक्वल टू 100, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए मैच कर रहा है क्या? एल 100, डेल्टा एल 0.1, टाइम पीरियड 2 और डेल्टा टी 0.01 सेकेंड। चले यहाँ बढ़े। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा टी बाय टी। फिर ये 2 क्यों आया? 2 आया ये फंडामेंटल से कि कोई भी चीज के सामने उसका अगर एक पावर है, जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ पे उन्होंने 3 मल्टीप्लीकेशन में डाल दिया, n था तो n मल्टीप्लीकेशन में डाल दिया, यहाँ पे n की वैल्यू है 2 तो वो 2 यहां से आया। डेल्टा टी 0.01, टी है 2, 2 गए तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 0.00। ये चीज आ जाएगी 0.001। दो आ जाएंगे ना जीरो, और ये दो चले गए तो ये 0.01। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 0.011। ओके, अब 0.011 था, याद रखिए उसको। ओए होए, रुको मालिका। तो ये 0.001 इंटू दिस, तो 0.01 था, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा जवाब आया था, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, हमारा जवाब आया था 0.01 इंटू इसको हमने 011 आया था, इंटू हमने 100 किया तो जवाब आया, 2 डेसिमल शिफ्ट हो गए तो 1.1% जो यहाँ इन्होंने दिया है। इस तरीके के कैलकुलेशन आपको बताते वक्त मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। आगे से करूंगा, शुरुआत का चैप्टर है, मैं आपको थोड़ा स्ट्रेच करना चाह रहा हूं ताकि आप ओरली मैथमेटिक्स भी समझना शुरू कर दे और घर पे प्रैक्टिस करना समझे इस चीज को। बहुत बार मैथमेटिक्स ओरली करना पड़ता है, ये आपको मालूम होना चाहिए जब आप सुपर कोई हाई क्वालिटी एग्जाम या थोड़े ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने जाते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स, this is something which I am of strong opinion need not take much time. In previous section we have studied various types of error, their origins and the ways to minimize them are also studied. Our accuracy is limited to the least count of instrument, and during the measurement, least count is the smallest measurement that can be made during the using the given instrument. For example, usual meter scale can measure up to 0.1 centimeter. अभी 0.1 सेंटीमीटर जब मैं बोलूंगा तो आप थोड़ा टेंशन में आ जाओगे, बट आप अपने घर पे जो स्केल है उसको उठाइए और देखिए सबसे छोटा वाला हिस्सा क्या है, then you will immediately say कि this is something which is approximately 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको कनेक्टिविटी आए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अभी सोचिए,
we measure the length of the metal rod using a meter scale of a least count 0.1 centimeter मतलब 1 millimeter. The measurement is done 3 times. 3 बार मेजर किया तो एक बार 15.4 सेंटीमीटर आया, दूसरी बार 15.5 आया, तीसरी बार 15.4 आया. अभी मैंने मीन निकाला तो जवाब आया 15.43. Out of this we are certain about the digit 1 and 5. 15 के बारे में certain है, but are not certain about the last 2 digit because least count limitation. अभी हम बात कर रहे हैं कि हम 0.1 मेजर कर पा रहे हैं, तो हम 0.43 कैसे मेजर करेंगे? जब मेरे पास 0.1 का ही लिस्ट काउंट है तो 0.43 is not measurable, and that is why this is not the significant figure when I am having instrument of list count 0.1 सेंटीमीटर. अभी ये आपके दिमाग में सचमुच आए ऐसी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और इनकी भी नहीं है. इनका एक्सपेक्टेशन ये है आप मतलब समझे कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है. एक जमाना था जब हम सिर्फ मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में बात करते थे. आज हम सिर्फ वर्नियर वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की बात करें तो 0.1 और 0.01 मिलीमीटर की हम बात करते हैं. वही आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसमें चला जाए तो आप सीधा एमस्ट्रॉन्ग लेवल पे 1 इंटू 10⁻⁻10 की बात करने लगते हैं. तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज बढ़ रही है, that is because of we are going into the deeper measurement field with a minimum list count. तो ये चीज के चलते अगर हम बोले कि suppose the large number of significant figures obtained in a measurement, the greater is the accuracy. जितना हमारा significant digits बढ़ेंगे उतनी हमारी accuracy बढ़ेगी, क्योंकि उतना हमारा list count अच्छा हो रहा है. अगर ये आपको समझ में आए तो आपके चैप्टर का आखिरी पन्ना शायद 12वां है क्या? हाँ, क्योंकि ये तो आपको ही पढ़ना है, जिसको मैं समराइज कर दूंगा. अगर ये पहले तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा तो चलेगा, नहीं तो बोलेंगे एक्स्ट्रा ले. हेलो, मुझे बताइए कि वी विल रन फॉर अनदर 5 मिनट्स, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब छोड़ दिए? सूरज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अथर्व को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननोन सेंडर कौन है? ठीक है, ये अननोन सेंडर कौन है भाई? चैट बॉक्स में लिखो, हु इज दिस अननोन सेंडर. ओके, ठीक है. तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वाले 2 पन्नों में. उसमें से एक पन्ने का आधा हिस्सा ही जरूरी है. क्यों? क्योंकि दैट इज अबाउट आवर सिग्निफिकेंट फिगर नाम का जो मैंने कॉन्सेप्ट चालू किया, रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर. ये चीज अभी मैं पढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको समझने का चांसेस थोड़ा कम है. बट आप खुद पढ़ोगे और नहीं समझ में आएगा और मुझे व्हाट्सएप से मैसेज करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे नहीं समझा. पहला सवाल, पहला जो स्टेटमेंट है बहुत सिंपल है. ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 178.43 सेंटीमीटर क्यूब, there are 5 significant digits which are 1, 7, 8, 4 and 3. कुछ बताने जैसी चीज नहीं, क्योंकि भाई ये इतने डिजिट थे, ये सब मेजरेबल थे और इस मेजरेबल चीज को हमने लिख दिया. तो ऑल डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज एक्चुअली मेजर्ड और इसको मैथमेटिकली लाया नहीं गया है. लेट्स गो फर्दर.
मैं मेरी आवाज आ रही है सबको? यस नो लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो ये आवाज जो आ रही है इसी में मैं मैसेज लिख देता हूँ कि टुडेज क्लास इज क्लोज्ड। हमारे यहाँ नेटवर्क का जो 1 घंटे का नाटक था वो फिर से शुरू हो गया। जो बचा हुआ हिस्सा है नेक्स्ट टाइम खत्म करेंगे। जो भी बचा हुआ है अगली बार खत्म करेंगे। थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर भी मैं खत्म तो करूंगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो आई होप मैंने जो अब तक पढ़ाया समझा होगा। कौन लिखा है फिर से? संकल्प ने लिखा, सूरज, ये सबने नाउ लिया, अथर्व ने भी लिखा। सो एवरीबडी इज वेरी क्लियर कि क्लास बंद कर रहे हैं हम लोग। बचा हुआ हिस्सा हम अगली बार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप स्टडिंग। बाय बाय। यू कैन लीव द क्लास नाउ।